पोस्टर है ना, डिस्क्रिप्शन में वही डालिएगा, रोटरी डिस्ट्रिक्ट। खुद ही बैनर है, 400 हो गया। फोटो लेने के लिए बस हो गया भाई, कितना बैनर है, एक मिनट बैनर बांधने मैं भरोसा कर रहा हूँ, आप लोग भरोसा नहीं कर रहे। Rajesh Modi, who has been, everybody knows that he's very passionate about this noble cause. And we all teamed up with him, myself, Harminder, Anil, and Ashok Ajmera. We're from the clubs, Borivali East, Rajesh is from Borivali East, Anaji is from Mumbai Western Elites, Harminder Singh Pathecha is from Bombay West, and Ashok Ajmera, who is not present here today, is from Bombay North. And of course, to guide us all, we have our AG, Manish Gyani. I would say he's been a Sarthi to us, like how a Sarthi is to Arjun. But here, he's got to handle 5 of us, not 1 Arjun. With that, I would say, mega organ donation awareness drive that we have been talking about. Today is the first event of that drive, RILA. When we talk about RILA, Rotary Leadership Awards, what comes to mind? That it's about self-learning. It's about self-empowerment and developing leadership skills. But today's RILA is not just limited to that. It's much beyond. It's about self-actualization. It's about making others in your community learn. It's about making others in your community getting empowered. It's about making them realize to empathize with life. Yes, I'm sure at the end of the day, we'll be able to make them realize that they can give precious gift of life to others. Yes, we all and others in the community can live beyond life. So a take back from this RILA today will be that when we go back, we'll go back with fire in us and conviction to empower others, something that only a leader is capable of. So with that, let's embark the journey of spreading love, peace, and faith, discovering that leader within yourselves. Thank you. Today I feel honored and privileged to introduce our humble, down-to-earth, calm, ever-smiling DG Praful Sharma. I just like to begin his introduction with 2 lines which describe him the best. बेवजह बेवक्त मुस्कुरा देता हूँ, आधे दुश्मनों को तो मैं बस यूं ही हरा देता हूँ. Praful ji, born and brought up in Mumbai, an alumni of prestigious JJ School of Applied Arts, he did his specialization in advanced printing from Germany. He's a partner in Scanographics and content creators. He's associated with a number of newspapers as a printing technology consultant. He was invited to join Rotary Club of Indore, then he joined Rotary Club of Ghatkopar, Mumbai, and since last 20 years, he's a member of Rotary Club of Borivali. He was a GSC team leader and went to Germany representing our district. He was the one who was responsible for making Sanjay Gandhi National Park plastic-free. A Hindi lover, he's translated the script of Astronomy of the Millennium from English to Hindi for Nehru Planetarium. He's supported with a beautiful wife, Vidyotma, who's a journalist, a senior media professional, and daughter,
Sonography are Paul Harris Fellows. And you'll be glad to know, since the time Prafuji has been in Rotary, he's been a part of all the governance teams. He's been holding all important positions. And since he likes his description to be brief, I'm just giving a brief description of his. And what more to say about him? All of us know about him very well. Only thing I can say is, in the end, that he's inspired us all with his favorite lines by Dushyant Kumar. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे With that, I will request Prafuji to come over and give us your blessings. नमस्कार and good morning to everyone. Can you hear that side? Can you hear me? प्रदीप जी आवाज आ रही है मेरी? हम आपके घर में खड़े हैं आज। Good to see all of you here. And आनंद कैसे हो? सबसे पहले तो रचना जी नमस्कार. And डॉक्टर साहब सुनील जी. So nice to see you people coming all the way from South Bombay, Soho. अमृता है यहाँ पे, रामनाथ है यहाँ पे, गिरिमोहन है. But of course, our dear friend, he lives, Ratan Pudar, is from South Mumbai close, but he lives here, so I would say he's from here only, I would say. अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर और इतनी बड़ी तादाद में सारे लोगों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार एक बार फिर से. रश्मि ने जो बताया, मैं तो चाहता हूँ कि इसे मुझे परिचय कमी करें तो अच्छा है, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड्स. बधाइयाँ रश्मि को, अनिल जी को, अरविंद को, मनीष को, राजेश मोदी को, और ऑफकोर्स गाइडेंस जो हुआ है सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से गिरीश जी ने थोड़ा बहुत मदद की होगी, उसको पूरी मदद की होगी गिरीश जी को. एंड सुनील जी, गुड ऑफ यू टू कम हियर, गुड ऑफ यू टू कम ऑल द वे फ्रॉम चेन्नई. एक बहुत फिल्म अभी इन दिनों आ रही है, काफी व्हाट्सएप पे आ रही है काफी फिल्म. मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, हम लोग शुरू करेंगे कहीं कार्यक्रम से शुरू करना है कि जो एक स्टेथोस्कोप लेके कोई किसी को चेक करता है शरीर में और अचानक वो फिल्म कई कई अलग अलग मौके की फिल्म बनी है जो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रही है और अचानक वो जो चेक कर रहा है और अचानक रोने लगता है, रोने लगती है और बाद में कैप्शन आता है कि he or she is feeling the heartbeats of the son or the daughter died and because of that organ donation the other person is alive. बहुत ही भावुक फिल्म है वो और मेरे ख्याल से हम लोग कई बार इस बारे में पेपर में पढ़ते रहते हैं किस तरह से होता है. मेरे यहाँ हमारा रोटी लोग बोरीवली एक आई बैंक चलाता है, रोटी लोग बोरीवली आई बैंक एंड प्रोसेसिंग सेंटर. उसके करता धरता थे हेमांग बोरा और विजय डॉक्टर नहीं विजय पालकर ने शुरू किया था वो अपनी मेहनत से. ग्लोबल ग्रांट हुआ करता था, उसको मैचिंग ग्रांट हुआ करता था, उसको शुरू किया. अब तक हम लोग लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को रोशनी प्रदान कर चुके डॉक्टर साहब उस आई बैंक. मैं क्यों उसके बारे में बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि उस आई बैंक के जो करता था हेमांग बोरा ने शुरू की, उसके बारे में ऐसा है कि ना उसको जब भी कोई मौका मिलेगा किसी भी आंख निकाल सकता है. उसका फोन आता है तो मुझे डर लगता है कि यार मुझे मेरी आंख निकाल देगा. वैसा ही डर मुझे राजेश मोदी का फोन आता है, राजेश का फोन आता है कि राजेश स्किन के बारे में इतना ज्यादा असेस है, मुझका फोन आता है मुझे लगता है कि हो सकता है वो बोले कि भाई प्रफुल्ल क्या कर रहे हो, 2 इंच चौड़ी देना अपने शरीर के देना. खैर जो अपार्ट फ्रेंड्स, इट्स वेरी नोबल कॉज और निश्चित रूप से भले हम लोग बड़े शास्त्रों में लिखा है विद्यादान, कन्यादान, अन्नदान, ये दान, वो दान, मगर मेरे ख्याल से प्रेजेंट सिचुएशन में वर्तमान स्थितियों में जो सबसे महत्वपूर्ण दान है इन सब दान के अलावा अंग दान, ऑर्गन डोनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है. क्योंकि जैसे हम लोग एक्सीडेंटल डेथ्स होती है जिसके बारे में हमने पढ़ा, मेरे ख्याल से फिल्म देखेंगे आप लोग थोड़े समय में पता चलेगा रैलम क्या हो गया. उनके बिना रक्त के बिना लोगों की जाने चली जाती है छोटी जगहों पर, बड़ी जगहों. अभी हमने ब्लड डोनेशन ड्राइव किया 1 जुलाई को, लगभग 2000 यूनिट्स ब्लड इकट्ठा किया. जो ब्लड बैंक के लोग बोलते हैं कि ये तो हम लोग कर रहे हैं जुलाई में, अच्छा है हमें अक्टूबर में सारे ब्लड बैंक ड्राई हो जाते हैं, वापस से कीजिए. ये अच्छी बात है कि ब्लड डोनेशन रक्तदान के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस है, बहुत सारे लोग आते हैं, मगर शरीर के अलग अंगों के बारे में अवेयरनेस अभी भी लोगों को नहीं है. हम ये महसूस करते हैं जब हमारी टीम जाती
आई इनोकुलेशन जाती है आंखों के लिए, हम लोग महसूस करते हैं कि अवेयरनेस नहीं है, और किस प्रकार के कार्यक्रम इस प्रकार से अवेयरनेस ला सकते हैं। मैं बधाई देता हूँ आयोजकों को जिन्होंने किया, आप सबको विशेष तौर पर विशेष नाम लेते हुए कि आप लोगों ने पीड़ा उठाया, और आप लोग इस शनिवार की सुबह इतनी दूर से लोग इतनी बड़ी मात्रा में, मुझे बताया किसी ने हरितोष बताया था शायद कि पहली बार हुआ 62 क्लब किसी नए काम के लिए जुड़े हैं, 62 क्लब वर्तमान स्थिति में लगभग 90 एक्टिव क्लब है, 91 एक्टिव क्लब है, गिव एंड टेक 1 और 2 क्लब्स, उसमें से अगर 62 क्लब्स हैं तो लगभग 60% से ज़्यादा 70% क्लब्स में पार्टिसिपेट किया, और यही नहीं कि इसी इलाके में अलग अलग लोग मांडू, कुरुल और दक्षिण मुंबई के भी साउथ मुंबई के क्लब्स में पार्टिसिपेट किया हुआ, ये बड़ी बात है। मेरे ख्याल से ये आपकी सफलता की सबसे बड़ा परिमाण है इस बारे में, कि प्रतीक है कि हाँ इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और उसमें मेहनत निश्चित रूप से इन लोगों ने निश्चित रूप से की। मैं पढ़ता रहता हूँ, आप सब देखता रहा, हर रोज फोन आते रहे कि ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, और पूरा हॉल का शक्ल भरा हुआ, अच्छी बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग आप लोग आज कार्यक्रम समाप्त हो गए रहेगा, उसके बाद उसको ज्योमेट्रिकली मल्टीप्लाई कीजिए इस अवेयरनेस को। एक व्यक्ति 5 व्यक्ति को बोले तो अच्छा है इस बात को, तो उसको वो 5 व्यक्ति उससे निवेदन करें कि वो भी 4-5 व्यक्ति को इस बारे में बताएं, और मुझे बताएंगे कि ये शुरुआत है, अंत नहीं है, ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे पूरी डिस्ट्रिक्ट में। जुलाई के महीने में इतने क्लब्स का इकट्ठा होना ये बड़ी बात है। दिस स्पीक्स द काइंड हार्टनेस ऑफ द स्टार प्रेसिडेंट्स। आई थिंक दे ऑल डिजर्व all star presidents who please rise and be recognized on the star president. Paritosh, Dinesh ji, Ramanand, Sunil, Sonal, here also some Rajesh to यहाँ खड़े हुए, Rajesh, इतने लोग हैं यहाँ पर हैं, आप लोग हैं, and of course Paritosh and Anil and Arvinder and Rashmi also, definitely. Thank you very much for being here and doing everything. मैं जो कहना चाह रहा था दुष्यंत कुमार की बातें वो ऑलरेडी रश्मि बता चुकी है, मगर दोस्तों अंगदान एक बहुत बड़ा सेवा का काम है, और सेवा के मार्ग में मगर मरहूम निदा फाजली के शब्दों में कहना चाहूँगा कि ये रास्ता है, we have to walk to serve the community, walk together for this particular cause। निदा फाजली कह गए कि सफर में धूप तो होगी, गढ़ चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, गढ़ चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में यहाँ, तुम भी निकल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, गढ़ चल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, अगर तुम खुद को बदल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, गढ़ चल सको तो चलो। कुछ ख्वाहिशें चंद उम्मीदें, कुछ ख्वाहिशें चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से घर पहल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, घर चल सको तो चलो। Come sunshine, come rain, friends, let's walk together to serve the community. And one of the main purposes that we have 4 trust areas: water, renewable energy, skill development, and urban innovation. I am very happy out of these four, one of the main agenda of first area urban innovation के बारे में कार्यक्रम हो रहा है। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मैं अपने व्यक्तिगत रूप से और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टीम हम हैं ना की ओर से जो भी आपकी मदद कर सकूँगा करने के लिए तैयार हूँ, बी assured. But as I said, this is not the end, this is the beginning again. And Rajesh and Anil and Rashmi and Dr. Diviji and Paritosh and Manish and Mona Gyani, this is not a beginning. Dr. Suryaji will be there for you. So, Girish ji kहाँ है? Girish ji को assurance देते कि we will always be there, and for you, skill donation we are already there. Thank you very much. Enjoy the program. I'm sure by the end of the program you will be enriched about this particular cause. But I am very happy to announce that my successor, Shashi Sharma, and his successor, Harjeet Singh Talwar, for 17-18, 18-19, 19-20, this must be also a unique program, first time in the, must be happening, that 3 incoming present
elections will be for the incoming leader for the 2021 will be there in the month of September. Results will be out maybe by December or January. And we'll request the incoming governor also that please continue it for the 4 years. If all goes well, Ravinder, Rashmi, and Anil, and Rajesh, and Dr. Sabat, Paritosh, and Manish, and all of that, all goes well, we would like it to continue at least for minimum 5 years. पंचवर्षीय योजना जब तक न बने तब तक कोई भी कार्यक्रम ठोस नहीं हो सकता है. मेरी शुभकामनाएं आप सबको और बहुत धन्यवाद और नमस्कार. The days to make sure that we move forward, get pledges, and then make sure that we have lot of awareness in the society, because we find it's very lacking. Now this film that has been prepared, there's been a lot of work behind it. It's a concept that to make a will, because all of us are worried what will happen after we die. So we are willing everything, some car to somebody, the necklace to the sun and stuff like that. So why don't we will our organs, our skin and eye, and be useful to the society? So I would request them to play this small film. It is to be followed by all the Rotaraactors, Rotarians everywhere, and you can of course add your own material to it, and we'll just play in a few seconds from now. The donor has pledged. So all the details are given, whom to be contacted and all. And so once you make the wish, you have to fill up this form and we'll give you the duly signed form to you. Thank you. We will also be providing you with pledge forms in time to come, and that will really help you all in reaching out to the masses, encouraging them to fill up the pledge forms. You can get back to us to the pledge forms and we'll issue the donor cards. ऑर्गन डोनेशन को रोटरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 साल के लिए ले जाए. Our target is around to get the pledge form signed by around 1 lakh people in 3 years. आज मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा लता जी मोगरे. इनके बेटे ने 30 साल की उम्र में उनका ब्रेन हेमरेज हुआ और they have decided to donate the organs. I know financial background of this Lata ji, that she is working in the offices of some of our members, like cleaning and all. And the son was working for any software. Yeah. He had brain stroke on 5th August 16 and was declared brain dead on 9th August at Seven Hill Hospital, Marur. He was 30-year-old. He left behind his wife Anita Mogre, mother Lata Mogre, father Narayan Mogre, and brother Nikhil. Organs were donated on 10th August, and he had saved 4 lives as given below. I will tell you. उसके शायद सिर्फ 1 हफ्ते बाद हमारी क्लब मुंबई वेस्टर्न एलीट के अंदर ऑर्गन डोनेशन के ऊपर हमने ड्राइव रखा था, एक इवेंट रखा था. लता जी वाज सो काइंड, शी वाज प्रेजेंटेड हियर एंड एक्सप्लेन्ड her son has raised and how they decided to donate organ. उनसे इंस्पायर होकर हमारी क्लब के इंट्रोडक्शन सबसे पहले उसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं उसके लिए आयोजकों को बधाई देना चाहूँगा कि बड़ा मुश्किल काम है. शनिवार के दिन सुबह जो सप्ताह का दिन है, आज वर्किंग सैटरडे है, उस दिन इतने सुबह इतने लोग आए हुए हैं. तो ये निश्चित रूप से जो आयोजक जो हैं, जिन लोगों ने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है और जिन्होंने सब कुछ काम किया है, उनके कड़ी मेहनत की वजह से इतने लोग इकट्ठा हो पाए. मोटिव क्या है डोनेशन के लिए, किस तरह से क्या क्या ड्राइव होने वाले हैं आपकी ओर से, और मेन ये जो मोटिव आप लेकर चल रहे हैं उसमें कितना सक्सेस मिल पाएगा और कितना मिल रहा है? ये सफलता की बात तो आने वाला समय बताएगा. हमारा काम है करना, परिणाम निश्चित रूप से आएंगे. हमारा मकसद ये थी ऐसे एक तरह से, जैसे मैंने बताया ऊपर कहा इस बारे में, कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में इसको अगर हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड करें तो बहुत अच्छा है. यहाँ लगभग आज करीब 100-150 लोग इकट्ठा हैं, और वे अगर हर व्यक्ति 1-2-3 लोगों को बताते जाएगा, इस तरह से बात फैलती जाएगी. और जिसे कहते हैं ना, माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी है वो निश्चित रूप से होगी. और कई लोग ऐसे हैं जो दूर दूर इलाके से हैं, दूर सुदूर इलाके से हैं,
तो अगर आए हैं उसका मतलब साफ है कि उन्हें इसमें दिलचस्पी है, ऑर्गन डोनेशन में, इसलिए इतना सफर तय करके आए। मुंबई में आना जाना बारिश में बहुत मुश्किल काम है, इसलिए आए। तो निश्चित रूप से इसके परिणाम बहुत सफल रहेंगे। और जैसा मैंने कहा कि ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। ऐसे कार्यक्रम पूरे साल भर चलते रहेंगे। और हमने सोचा है कि मैं 30 जून 2018 को मेरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा गवर्नरशिप का। उसके आने वाले 2 गवर्नर्स हैं रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3141 के, उनसे हम लोगों ने वायदा लिया हुआ है कि वो इसे कंटिन्यू करेंगे। ये दैट इटसेल्फ इज अ सक्सेस रेट। ऑर्गन डोनेशन की अगर बात करें तो फिलहाल किन ऑर्गन्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है, और अगर बात करें लोगों की तो किस तरह से आप उनके टारगेट करेंगे और किस तरह से ये मैसेज पहुंचेगा? मैसेज इस तरह है कि जो आयोजक जिन्होंने काम किया है वो लोग चाह रहे हैं कि इन्हें स्कूल्स में, मॉल्स में, जहां जनता अधिक से अधिक मात्रा में आती है, जो फूड जिसको बोलते हैं कि जो लोग आते हैं, उन लोगों को वहां पर नुक्कड़ नाटक करके और वहां पे अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा। हाँ, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप्स का भी है, बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशन, मॉल्स, स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे जिनको अधिकतर लोग आते हैं उनके वहां पर जाकर ये लोग काम करेंगे और निश्चित रूप से अवेयरनेस होगा। हाँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण है जो कि हमारे मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है, जहाँ पे अधिकांश लोग आते हैं, सार्वजनिक गणपति उत्सव अभी शुरू हो रहे हैं, तो गणपति पंडाल के वक्त पे वहाँ पे कार्यक्रम हमारा है कि आयोजक वहाँ पे जाके अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम करेंगे। विशेषकर ये समय इसलिए चुना गया है गणपति पंडालों का, क्योंकि हम में से काफ़ी लोग नहीं जानते हैं कि गणपति भी ऑर्गन डोनेशन का प्रतीक है, और ये बात सब लोगों तक पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ऑल डूइंग, रीचिंग आउट टू द मासेस ड्यूरिंग दैट टाइम्स, फैसिलिटेटिंग इट इन द सेंस विल बी हैविंग द प्लेज फॉर्म्स, जो लोग प्लेज करेंगे हम उन्हें डोनर कार्ड देंगे और उसके बाद में उनको अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। क्योंकि कई लोगों को ये रहता है त्वचा निकाली जाएगी, तो कहाँ से निकाली जाएगी? पूरी त्वचा? वी आर नॉट इंटरेस्टेड। देन वी से नहीं, ये खाली आपकी थाइस और बैक से निकाली जाती हैं, बाकी सब इंटैक्ट रहता है। फिर लोग आगे बढ़ के आते हैं। तो ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और हमारे बीच उपस्थित है आज यहाँ पे नेशनल बर्न सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर केशवानी जी, जो कि ज़्यादा जानकारी आपको इस बारे में दे सकते हैं। इनफैक्ट रोटरी का अपना नेशनल बर्न सेंटर के अलावा वी हैव रोटरी आई बैंक्स, एंड प्रफुल्ल जी के लीडरशिप के अंदर में वी आर प्लानिंग टू ओपन अप मैनी सैटेलाइट आई बैंक्स, ताकि लोगों को ये सुविधा रहे कि वो कहीं भी आसानी से जाके इस दान में शामिल हो सके। प्रफुल्ल जी, एक आखिरी क्वेश्चन होगा, डोनेशन की जहाँ तक बात हो रही है तो लोग किस तरह से आपके साथ जुड़ सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति है वो अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहे, वो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं? डोनर्स कार्ड हैं जो भी रिलीज हुए हैं, और हम नंबर, हमारे सब जगह नंबर्स हम लोग फ्लैश करेंगे, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रोटरी क्लब, मुंबई के किसी भी रोटरी क्लब से, खासतौर पे चूंकि हम मुंबई में हमारी उपस्थिति मुंबई में है, डिस्ट्रिक्ट 3141 मुंबई और पालघर डिस्ट्रिक्ट, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में है, किसी भी क्लब से संपर्क करेंगे, हमें बिल्कुल उसकी जानकारी मिलेगी। हम डोनर से बिल्कुल संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सुनील केसवानी, डॉक्टर सुनील केसवानी। सर, क्या कहना चाहेंगे? डोनर्स की अगर बात करें तो लोगों के मन में ये डर होता है कि हमारे मरने के बाद हम क्यों अपना अंग किसी को दें, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? और किस तरह से अगर बात करें तो किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है लोगों को, एक जो मैसेज जाता है पॉजिटिव मैसेज, क्या उसके लिए क्या कहना चाहिए? वो लोगों में गलत धारणा है कि लोग डोनेट करना नहीं चाहते, कि ये गलत धारणा है कि लोग डरे हुए हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं कि ये ऑर्गन डोनेशन चीज़ क्या है। तो फर्स्ट थिंग है कि रोटरी के ज़रिए हमें ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस क्रिएट करना है, और आज का जो प्रोग्राम है इस डायरेक्शन में फर्स्ट प्रोग्राम है, और अगले 3, 4, 5 साल तक चलेगा। तो पहले लोगों को पता चलना चाहिए कि जब स्किन निकालते, लोग मुझे पूछते हैं, मराठी में बोलते हैं तुम्ही ऑर्गन स्किन काढतात तर ते त्वचा स्किन डोनेट करतात, स्किन काढतात तो ऑर्गन बाहर येतात का? मीन्स आप चमड़ी निकालते हैं, त्वचा निकालते हैं तो सब ऑर्गन बाहर आते हैं? नहीं, जो स्किन के 8 लेयर होते हैं, 8 लेयर में से सिर्फ हम 1 लेयर निकालते हैं, वेफर थिन लेयर, 7 लेयर तो वहाँ के वहीं पड़े रहते हैं। दूसरा, लोगों के मन में एक गलत धारणा है कि जब स्किन निकाली जाती है या कोई ऑर्गन निकाल तो ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग नहीं होती, जब आदमी गुजर जाता है तो ब्लड क्लॉट हो जाती है, तो ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं। तो भयानक कुछ लगता नहीं है। अगेन, कहाँ से स्किन, लोगों को लगता है जब स्किन निकालते हैं कि पूरा फेस का भी स्किन निकाल देंगे, हाथ का भी, सबका नहीं निकाल, ओनली कवर्ड एरियाज ऑफ द बॉडी का निकाला जाता है। दैट मीन्स थाइस का निकाला जाता है, लेग्स का निकाला जाता है और बैक का निकाला जाता है, तो पूरा बॉडी का नहीं निकाला। और ये जो पार्ट्स हैं
अपने हिंदू धर्म के हिसाब से या मुस्लिम धर्म के, ये कवर्ड हो जाते हैं जब पेशेंट को दफनाया जब कोई तो कपड़े बैंडेज लगा के कपड़े पजामा पहना के, तो कुछ कम्युनिटी साउथ इंडियन कम्युनिटी अपर चेस्ट खुला रखा जाता है, तो अपर चेस्ट से हम नहीं निकालते, बैक से निकालते हैं। तो आई थिंक बहुत ही आसान है। और एक बार यहाँ पे हम ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है, कहा जाता है प्रोजेक्शन है कि 2025 तक चाइना को भी ओवरटेक करने वाले। इसमें एक फायदा जरूर है कि ज़्यादा पॉपुलेशन से ज़्यादा ऑर्गन्स होने की संभावना है। और हमारा एक कैलकुलेशन है कि इफ इवन 0.001% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ऑर्गन्स डोनेट करने पे आ जाए, हमारे पास इतने ऑर्गन्स होंगे कि ना ही कि हमारी यहाँ की वेटिंग लिस्ट सब कंप्लीट हो जाएगी, पूरे ग्लोबल लेवल पे हम यहाँ पे ऑर्गन लोगों को दे सकेंगे। जैसे कि अभी श्रीलंका जैसी एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, उन अपने कंट्री को ही पूरे आई बॉल्स देते हैं, वो श्रीलंका आई बॉल्स इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। तो ऐसी परिस्थिति यहाँ एक बार रोटरी ने अभियान ले लिया, जैसे स्किन बैंक हमने शुरू किया। स्किन बैंक, फर्स्ट स्किन बैंक इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन नेशनल बर्न सेंटर इन बॉम्बे एट न्यू बॉम्बे बाय रोटरी। और यहाँ पे इंडिया में हमने 6 स्किन बैंक चालू किए, ऑल थ्रू रोटरी। तो रोटरी जैसे पोलियो को एंड कर चुका है, आई थिंक ऑर्गन डोनेशन के जो अभाव हैं, जो डेफिसिट है, वो उसको भी कंप्लीट करेगा इन द सेम वे जैसे प्रफुल्ल शर्मा ने आज सेमिनार में बोला है। आई थिंक रोटरी जब भी कुछ प्रोजेक्ट हाथ में लेता है उसको पूरा खत्म करके रखते हैं, जो भी खराब चीजें हैं। इसके अलावा अगर प्रमोशंस की बात करें, एडवर्टीजमेंट्स की बात करें, तो कुछ साल पहले एक ऐड आया था आई डोनेशन के लिए ऐश्वर्या राय को लेकर, लेकिन उस वक्त कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ पाया था। अब की यूथ जो है वो काफी नॉलेजेबल हो गई है, जानकार हो गई है, तो कितना डिफरेंस लग रहा है आपको कि इस बार जो आप लोग कैंपेन चला रहे हैं उसमें सफलता आपको मिल पाएगी? आपने कहा कि आई डोनेशन के बारे में, नहीं, आई डोनेशन के बारे में हमें काफ़ी सफलता मिली है। हमने अवेयरनेस के सोसाइटीज़ में जाके काम किया, जो हम लोगों ने धार्मिक स्थलों में गए वहाँ हम लोगों ने काम किया। ये जो भी कैंपेन जो है ऑर्गन डोनेशन का, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, बहुत बड़े तौर पे हम लोग शुरू कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि पूरी सफलता मिलेगी। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हम उसको आने वाले वर्षों में भी कंटिन्यू करना चाहेंगे, जारी रखेंगे उसको। और ये जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। और हमारा रोटरी का कार्यकाल शुरू होता है 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून अगले साल तक चलता रहता है। तो ये जुलाई के महीने में अगर शुरू हुआ है तो मेरे ख्याल से लगभग हर महीने 1.5 महीने में ऐसे कार्यक्रम शहर के विभिन्न इलाकों में होते रहेंगे और उससे लोगों को जानकारी मिलती रहेगी अंगदान के बारे में, ऑर्गन डोनेशन के बारे में। We have to take some permission from the railway authorities, and as and when we get the permission, we'll do. But major stations we would like to cover, where we have a lot of crowd is there. And also, how many Ganpati mandals are targeted? 1,008 Ganpati pandals. Yes. We are targeting both the central line and western line, right from Church Gate to Dhanu. That's the target. So we want to reach out to the masses, and for doing this, as you questioned, how about the youth? Youth is a influencer. So today's program that we have conducted, we have begun an event considering the youth. So you see there we have a lot of Rotaractors present, which is the youth wing of Rotary, aged between 18 to 30 years. They all are present here. They're just representing one of the areas, like one coming from Mulund, the other coming from Chembur, the other coming from Churchgate. So we have representation from across Mumbai in this hall today. They'll be the torch bearers. They'll be going back and educating many more youths in their clubs and societies across. So this is not just stop here, it's just the beginning, and leaders are in the making in the hall upstairs. Okay, but in the rural areas, not really people are. So are you targeting the rural areas? At this moment, see the message, the kind of communication infrastructure we have in the city. If we do it in the city, and then we'll bring it to the rural areas, that will make a difference. Because we don't have so much penetration in the smaller towns, but sure, when they will come to know about this awareness is going on, this scheme is going on in Mumbai, they'll get to know about through the regional press or the media, through you people. They will definitely be more equipped and then knowledgeable, and then when they will go there, our success will be more there than starting directly from there. Also, the thing is, when you create awareness, the facility should exist there to harvest the skin and eyes. If you create awareness and they want to donate and the facilities not exist, the whole project will boomerang.
So first let us use the cities as a model and then this whole movement will percolate down to the cities. जैसे एक टैंक को भरना है, पहले मेन टैंक को आप भरते हो, फिर उसका जो ओवरफ्लो होता है वो छोटे सब्सिडरी टैंक्स में जाता है. तो पहले सिटीज़ को अवेयर होने दो. सिटीज़ में अवेयर करना ज़्यादा ईजी है. यहाँ लोग एजुकेटेड हैं, लोगों में सोशल मीडिया पे हैं, नेटवर्क्स पे हैं. और जैसे आपने पूछा 10 साल पहले जो हुआ उतना इफेक्टिव, 10 साल पहले भी इफेक्टिव था, बट आजकल सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया. अब व्हाट्सएप पे एक मैसेज अभी डालो, कल सुबह तक हर व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाता है. मैं ऐसे 10-15 ग्रुप्स पे हूँ, एक पे मैं डाल देता हूँ 10-15. इफ अगर मैसेज सही है, लोगों को भाता है, वायरल हो जाता है, तो कल सुबह तक आ जाता है. आप फेसबुक पे डालो, आज डालो, कल सुबह तक सब जगह आपको भी मिल जाएगा. So I think today it's a very powerful medium for good causes as well as for bad causes. The social media is a very powerful platform, but we are using it for a good cause. And trust me, believe me, the kind of films that we are going to make, the presentations that we are going to put on the public platform are going to be so attractive and which will touch the hearts of people. आपने film देखी ऊपर अभी, otherwise we'll circulate the film to you. That film is so short and crisp film, which people will see and on their own they will forward to at least 10 people. And as Prafulji has said, there will be a multiplier effect. Beyond that, we also try to say that each one tell one. As simple as that. हर एक आदमी को बोले, और automatically it will spread. And the other thing is rule of twos हम लोगों को बोलते हैं. What is the rule of twos? Every club को बताया गया है through Prafulji through this year that each club, Rotary Club, there are 91 clubs. Each club should do the rule of twos. What is the rule of twos? They should go to 2 hospitals and ICUs में उनको inform करें जहाँ लोग मरते हैं. 2 जनरल प्रैक्टिशनर्स, जब पेशेंट गुजर जाता है तो अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं डेथ सर्टिफिकेट, तो फैमिली डॉक्टर अपने पेशेंट के रिलेटिव्स को बोलेगा, देखो मिस्टर श्रीनिवासन बहुत अच्छे आदमी थे, जब वो जीवंत थे बहुत अच्छा काम कर, मरने के बाद भी आप नहीं चाहते कि 8 जन को उससे फायदा हो, बिकॉज फ्रॉम ईच ऑर्गन दोनों 8 पीपल बेनिफिट. सो द जनरल 2 जनरल प्रैक्टिशनर्स, 2 नर्सिंग होम्स इन दैट एरिया, 2 schools in that area, 2 colleges in that area, 2 housing societies in that area, and 2 NGOs in that area, and 2 slums in that area. So rule of twos में करके 2 करना बहुत मुश्किल नहीं है. और क्या करना है, उसमें कुछ खर्चा भी नहीं है. इट्स अ नो कॉस्ट थिंग. खाली जाके लोगों को बताना है, ब्रोशर्स बांटने हैं और उनको माउथ टू माउथ एक्सप्लेन कर. सिर्फ ब्रोशर से काम नहीं चलेगा. ब्रोशर लोग ऐसे कचरे में बहुत ब्रोशर आते हैं, और ऐसे 1-to-1 में अगर हो गया, और जैसे आपने आज सुना, आपने आप एक सिर्फ आपके नेबर को बताया, आपके नेबर ने अपने नेबर को बताया. सो आई थिंक ऑटोमेटिकली ये मैटर ऑफ टाइम है, जो ये मूवमेंट पिकअप होगा, इसको फिर कोई रोक नहीं सकेगा. गेटिंग किडनीज और ये डाइज बिकॉज किडनी नहीं मिला, देन इट विल हिट यू एंड से कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. रोटरी इस अभियान से बहुत सालों से जुड़ा हुआ है. गए साल भी हमने किया था. एक दिन में 2000 प्लेज हमने किए थे, एक दिन में, जुलाई के मंथ में ही किया था हमने, और पूरे साल हमने इसके ऊपर ये अभियान हमने आगे भी बढ़ाया. और जैसे डीजी प्रफुल्ल शर्मा जी ने अब कहा कि ये 5 साल तक हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं, बिकॉज ये इसको कंटिन्यूस बेसिस पे करना चाहिए. और ऑर्गन डोनेशन एक अवेयरनेस, उसमें अवेयरनेस करना ज़रूरी है, क्योंकि उनके रिलेटिव्स को पता होना चाहिए कि हमने डोनेट किया, और हमारी मृत्यु होने के बाद हमारे रिलेटिव कांटेक्ट करते हैं हॉस्पिटल को या अथॉरिटीज़ को कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे डेथ हुआ और इन्होंने प्लेज किया हुआ है, इनका ऑर्गन, इनके आईज, इनके स्किन, और आप इमीडिएटली उनको फिर लेके उनका ऑर्गन्स लेके किसी के काम आए. क्योंकि हमारी ज़िंदगी, हमारा जो शरीर है, हमारे मरने के बाद वो किसी के काम नहीं आती. इधर उसको दफनाया जाता है या उसको वो एशिज हो जाती है. तो अपने जो अवयव है, ऑर्गन्स है, वो किसी के काम आए, किसी को ज़िंदगी मिले, किसी को दृष्टि मिले, अगर ये किया जाए, ये अवेयरनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और अवेयरनेस अपने लोगों में और उनके रिलेटिव्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये क्या, ये सिंपल प्रोसेस है. ये फॉर्म अपने को साइन करके अपने फैमिली मेम्बर के पास देना है. उस पर नंबर लिखे हुए होते हैं. अपने घर में जब मृत्यु हो जाती है तो वो जो रिलेटिव होता है जिसके पास वो फॉर्म होता है, उसको पता होना चाहिए कि हमारे पापा ने या हमारे माँ ने या हमारे भाई ने या हमारे बहन ने या बीवी ने ये प्लेस किया था, इनकी इच्छा थी कि इनका ऑर्गन्स दिया जाए. और फिर वो रिलेटिव नियरेस्ट हॉस्पिटल को फ़ोन करके वो मंगा लेते हैं, एंड फिर वो पूरा लॉजिस्टिक्स मैनेज कर लेते हैं. रोटरी इसमें बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है. आयरोली में हमारा स्किन बैंक है, और आई हॉस्पिटल्स, अभी हम यहाँ मलाड में भी वहाँ बैठे हैं, जहाँ पे ये दिस इज इटसेल्फ इज़ आई हॉस्पिटल. ऑल्सो हमारे बोरीवली में है, और बहुत सारे ऐसे हमारे केंद्र हैं जहाँ पे हम लोगों को मुफ्त में भी करते हैं. कैटरेक्ट ऑपरेशंस वगैरह भी बहुत सारे करते हैं. बट एट द सेम टाइम अब हम ऑर्गन डोनेशन की बात कर रहे हैं, तो सब फैसिलिटी हम देते हैं. 20 अगस्त को
हम रेलवे स्टेशन और पब्लिक प्लेसेस में अवेयरनेस करने वाले हैं। 20 अगस्त को मेगा ड्राइव होने वाला है और फिर 24 से लेकर 31 अगस्त ये 1000 पंडाल के ऊपर गणपति पंडाल में हम लोग करने वाले हैं। लोकमत मीडिया पार्टनर भी है इसमें, सो लोकमत भी जहाँ पे हैं जिनका उनके भी पंडाल में बहुत सारे उन्होंने स्पॉन्सर्स किए हैं जहाँ पे मीडिया पार्टनर हैं, तो वो भी इसको अभियान को हमको मदद करने वाले हैं। और आप लोग भी हमारे मीडिया DNA है या आप TV चैनल वाले हैं, आपका भी हम लोग सहयोग चाहेंगे कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रचार करें उतने लोगों को ज़िंदगी मिलेगी, उतने लोगों को दृष्टि मिलेगी। स्कीम नहीं है इसमें, जो है ये तो दान है। और हमने एक कॉन्सेप्ट, किसी की फैमिली को अगर उसी फैमिली को जरूरत पड़ गई जिसके फैमिली मेंबर्स ने डोनेट किया हुआ है, इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि इट इज़ ऑल इंडिया का चार्ट है, सिटी का चार्ट रहता है गवर्नमेंट की तरफ से, वेटिंग लिस्ट रहती है, तो एज पर वेटिंग लिस्ट ही जाना है। तो ऐसे कोई स्कीम नहीं है गवर्नमेंट में कि अगर आपने दिया है तो फिर आपको फैमिली में अगर ट्रेजेडी होता है तो ऐसे होगा। ये वॉलंटरी है, वॉलंटरी डोनेशन है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं होता है, प्रायोरिटी नहीं होती किसी को, काम है। और ऑर्गन डोनेशन ये सबसे मतलब श्रेष्ठ एक कार्य हम बोल सकते हैं, क्योंकि किसी को ज़िंदगी मिले, किसी को दृष्टि मिले, किसी की ज़िंदगी बन जाए, तो इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। और रोटरी वैसे बहुत सारे अच्छे कार्य कर रहे हैं, टॉयलेट ब्लॉक्स बना रहे हैं हम, हैप्पी स्कूल्स बना रहे हैं लड़कियों के लिए, खास करके खास प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और जेनरिक मेडिसिन हम लोग उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। पेडियाट्रिक हार्ट सर्जरीज में हम फोकस कर रहे हैं, तो बच्चों का हार्ट सर्जरीज वगैरह हम फ्री में करते हैं। जो बिलो द पॉवर्टी लाइन येलो एंड ऑरेंज रेशन कार्ड वाले जो हैं उनको हम लोग मुफ्त में अच्छे हॉस्पिटल्स में हमारा टाइप है, कोकिलाबेन अंबानी है, वॉकार्ड है, तो फोर्टिस वगैरह, तो हमारा मतलब टाइप है और हम लोग अच्छे हॉस्पिटल में बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ देके उनका मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। ने ऑर्गन डोनेशन क्यों हाथ में लिया है, मैं आपको सिंपल फिगर्स बताऊंगा, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि इसकी सीरियसनेस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मुंबई में लास्ट ईयर खाली 2600 आंखें जमा हुई थी। देयर वर ओनली 2600 आई बॉल्स विच वर इनएक्विलेटेड। और हमें जरूर है कम से कम 50,000 आंखों की, मुंबई जैसे शहर में 50,000 लोगों को कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की जरूरत है। ऐसे लोगों को हम नज़र दे सकते हैं अगर हम आई डोनेशन का प्रमाण बढ़ावे। स्किन डोनेशन की बात करते हैं तो पूरे मुंबई में हमें 2000 डोनेशन की जरूरत है पूरे साल में, और हमें मिलते हैं सिर्फ 200 डोनेशन। हार्ट की बात करते हैं तो एनुअल रिक्वायरमेंट कम से कम 5000 हार्ट्स की जरूरत है मुंबई में, हमें मिलते हैं सिर्फ 25 से 30 हार्ट। किडनी की हमें जरूर है 50,000 किडनी की, हमें मिलती है 5000 किडनी। लीवर की हमें जरूर है 3000 लीवर की, हमें मिलते हैं 30 लीवर। तो ये ऑर्गन डोनेशन की अवेयरनेस जितनी बढ़ेगी, लोगों में मोटिवेशन आएगा। बहुत सारे लोगों को ऑर्गन डोनेशन क्या है वो भी पता नहीं है, तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है मासिव लेवल पर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में क्रिएट करनी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जिधर ICU सेटअप है, डॉक्टर्स के अंदर अवेयरनेस लानी है, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो ये चीज़ को लेकर बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3141 जो है इसी मुद्दे को लेकर बड़े पैमाने पर अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है, और हम चाहते हैं कि जो ऑर्गन डोनेशन का प्रमाण है वो हमारे देश में बढ़ना चाहिए। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया कि सरकार से इसमें क्या सहयोग चाहिए। 2 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ये कंसेंट साइन किया है फॉर ऑर्गन डोनेशन, उससे इंस्पिरेशन मिलता है। लेकिन जो मेजर चीज जो आई विल रिक्वेस्ट आवर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रफुल्ल जी to take this matter with the government. In many countries, we do not have to sign the consent. Like in Singapore, in Spain, if person is died with a brain dead or accident, they automatically take all the organs for the needy person. वहाँ पे अगर आपको नहीं करना है तो आपको opt out sign करना पड़ता है कि I don't want to donate. So we want from the government कि do this. It will be very simple, very easy. आज एक्सीडेंटल डेथ के अंदर इतने लोग गुजरते हैं, वो एक्सीडेंट होता है, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, दुख की बात है मानवीय। मैं एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ उनके साथ कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो स्कूल के छोटे बच्चों का करिकुलम होता है उसमें ये ऑर्गन डोनेशन, स्किन डोनेशन का चैप्टर एक ऐड करे, तो बचपन से उनको एक वो जो अवेयरनेस मिलेगी उनको, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी। तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं दिल्ली, वो हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा
मेरे को ऐसा लगता है स्किन डोनेशन आई डोनेशन तो बहुत ही इजी है, इसमें खाली आधा घंटा लगता है। वैसे भी ये शरीर तो जलने वाला है या तो दब जाएगा, तो अगर इससे जान बचती है तो, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन का ऐसा है कि वो रियली, क्योंकि वो ब्रेन डेड के केस में होता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। नॉर्मल केस में ब्रेन डेड बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन जो नेचुरल डेथ है उसके बाद खाली 2 ही ऑर्गन डोनेशन हो सकते हैं, एक स्किन डोनेशन, एक आई डोनेशन। और क्योंकि मैं पिछले 2 साल से काफ़ी अवेयरनेस में लगा हुआ हूँ, मुझे ऐसा लगता है इवन डॉक्टर्स को भी इसके बारे में बहुत कम मालूम है। तो हम लोगों ने अभी एक नया अभियान शुरू किया। हम हफ्ते 10 दिन में 1-2 डॉक्टर्स के क्लिनिक पे जाते हैं, उनको सब बताते हैं, उनके वहाँ प्लेटफॉर्म रखते हैं, पोस्टर लगाते हैं कि भाई आपके पास जो भी आता है उनको आप इसके बारे में बताओ। परसेंटेज देखना, दैट विल बी अ वेरी स्मॉल थिंग टू से कि हमारी मिशन क्या है, विल बी अंडर एस्टिमेटिंग आवरसेल्व्स। मैं अगर बोलूँगी 40%, 50%, इट विल बी अंडर एस्टिमेशन, बिकॉज द वे आवर यूथ इज़ रियली मोटिवेटेड फॉर द कॉज एंड दे आर कमिंग हियर। और वो लोग, यह भी एक और महत्वपूर्ण इसमें संदेश में देना चाहूँगी, अवेयरनेस है, लोग प्लेज करते हैं, लेकिन रिलेटिव्स को ये नहीं मालूम होता कि उनका ख्याल कैसे रखना है। प्लीज देंगे उतने लोगों में अवेयरनेस आएगी और यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ डोनेशंस। थैंक यू।